Hallelujah. 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 Praise the Lord. I'm happy to be back again. प्रभु की स्तुति हो, वापस आकर खुश हूं मैं. I was in Jamshedpur with my mother and Pastor Shishir. मैं जमशेदपुर में थी अपनी माँ के पास और पास्टर शिशिर के पास. And I had a very great time there. और मेरा वहाँ बहुत बढ़िया समय रहा. Thank you for praying for me. धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए. It was awesome. It was a very blessed time there. ये बहुत बढ़िया समय था, आशीषित समय था. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Well, thank you for joining us online. धन्यवाद ऑनलाइन हमसे जुड़ने के लिए. Whoever did not come here, जो कोई भी यहाँ पहुँच ना पाया, पहुँच ना सका. thank you for joining us online. धन्यवाद हमसे जुड़ने And के लिए. whoever online. is here, please clap your hands for yourself. और जितने भी यहाँ हैं, आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं. Amen. Amen. Come on, clap बजा your दीजिए. hands for yourself. अपने आप के लिए ताली बजा दीजिए. Come on, बजा come दीजिए. on. बजाइए. Hallelujah. 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 Praise the Lord. प्रभु की You स्तुति. made it. आप कामयाब हो पाए. Amen. Amen. You made it no matter what, but you came here. आप ऐसा कर पाए, कुछ भी क्यों ना हो, आप यहाँ आ सके. You know, your action speaks louder than your words. आप जानते हो, आपके जो क्रियाएं हैं, आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंचे बोलते And I believe on actions more than the words. मैं शब्दों से ज्यादा जो है क्रियाओं पर प्रति विश्वास करती हूँ. Your action speaks louder than your words. आपके जो है क्रियाएं जो है आपके शब्दों से कहीं ज्यादा बात करते And हैं. it pleases to God. और ये परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So as I was traveling from Jamshedpur to Ranchi to catch my flight और- on 19th, 19 तारीख को जैसा मैं जमशेदपुर से यहाँ आने के लिए फ्लाइट पकड़ रही थी and on the way, और रास्ते में I was my eyes were going down like this मेरी आंखें बंद हो रही थी because I was awake from 4 o'clock क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से जागी हुई थी and couldn't sleep in the night properly because I want to awake at 4 o'clock. और रात को मैं अच्छे से सो ना सकी क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे जागना था. So on the way I was dozing like this, और रास्ते में मेरी आंखें बंद हो रही थी ऐसे. but not really पर too much. ज्यादा नहीं. I was बहुत trying to be awake because I don't want the driver, I mean Shalom, Pastor Shishir's oldest son, he was dropping us in the airport. और क्योंकि पास्टर शिशिर का बेटा शालम हमें एयरपोर्ट में ड्रॉप करने आ रहा था. So और I didn't want him to fall asleep with me. और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे साथ जो है वो भी नींद में पड़ जाए. So I was doing like this. और मैं ऐसे अपनी आंखें खोल रही थी. And then when I was opening my eyes, और जब मैं अपनी आंखों को खोल रही थी, suddenly a scripture came in अचानक front of my eyes, मेरी आंखों के सामने एक वचन आ गया. very brightly like a light, बहुत ही चमकदार तरीके से जैसा कोई रोशनी हो. and it was very clear. ये बहुत ही साफ था. It was Psalm chapter 4 verse 7. ये भजन संहिता 4 और उसकी 7 आयत थी. Psalm chapter 4 verse 7. भजन संहिता 4 उसकी 7 आयत. So I opened my eyes wide that am I seeing the right thing? और फिर मैंने अपनी आंखों को खोल के पूछा कि क्या मैं सही चीज देख रही हूँ. So when I opened my eyes wide, और जब मैंने अपनी खुली आंखों को खोला, then I saw Psalm 4:7 in front of me, तब मैंने अपने सामने भजन संहिता 4 की 7 को देखा. completely with my open eye. अपनी खुली आंखों से पूरी तरह से. So immediately I took out my Bible from my purse और तुरंत ही मैंने अपनी बाइबल पर्स में से निकाली and started studying और उसको पढ़ना शुरू कर दिया. and meditating on it. मनन करना शुरू कर दिया. The whole journey I was keeping in my heart and pondering the word of God in my पूरी heart. यात्रा में मैं इस वचन को, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा रही थी, इसी पर मनन कर रही थी. It's a beautiful psalm. ये बहुत ही खूबसूरत भजन है. If you read from verse 1, और यदि आप पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, David sang this song. दाऊद ने इस भजन को गाया था. He says, answer me when I call. He's speaking to God. और वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि जब मैं तुझे पुकारूं तुम मुझे उत्तर दे. He's saying, answer me when I call, O God, O God of my righteousness. और वो कहता है कि हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे. You have relieved me from my stress. जब तूने मुझे जो है मेरी सकीती में
आराम पहुंचाया, सहारा दिया, Be gracious to me and hear my prayer. और मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। Verse 2 says, O sons of men. दूसरी आयत कहती कि हे मनुष्य के पुत्रों। Now he's speaking to the followers who's following David. अब देखिए वो अपने अनुयायियों से बात कर रहा है जो दाऊद के पीछे चल रहे थे, To the children of Israel. इज़राइल की संतान से। He says, O sons of men, how long will my honor become a reproach? और वो कहता है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? He says, how long will you love what is worthless and aim at deception? और वो कहता है कि तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखते रहोगे और झूठी युक्तियों की खोज में रहोगे? And he says, David says, but know that the Lord has set apart the godly man for himself. और फिर आगे दाऊद कहता है कि ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। The Lord hears when I call to him. और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। Verse 4. चौथी आयत। He says, tremble and do not sin. Meditate in your heart upon your bed and be still. कहता है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। Speaking to the children of Israel. इज़राइल की संतान से बात कर रहा है। He says, tremble, or he says, be angry, but do not sin. और वो कहता है कांपते रहो, और वो ये भी कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Meditate in your heart upon your bed and be still. अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। Verse 5 says, offer the sacrifices of righteousness and trust in the Lord. और पांचवी आयत कहती है कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। Amen. He's Amen. saying, offer the sacrifices और of righteousness वो कहता है कि धर्म के बलिदान चढ़ाओ and trust in the Lord. और प्रभु पर भरोसा रखो। Verse 6 he says, many are saying, who will show us any good? और छठवीं आयत कहती है कि बहुत से तो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। He says, lift up the light of your countenance upon us, O Lord. और वो कहता है कि हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। Amen. आमेन। And verse 7 says, और सातवीं आयत कहती है you have put gladness, he's speaking to God. और वो परमेश्वर से बात कर रहा है कि तूने आनंद भर दिया है। You have put gladness in my heart और more than when their grain and new wine abound. और तूने मेरे मन में, अंग्रेजी के अनुसार हृदय में, उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। Amen. आमेन। More than the farmers cut the harvest. और जो किसान अपनी फसल को काटे उससे भी कहीं बढ़कर, More than they get the wine. और जितना वो दाख मधु New प्राप्त करते हैं, wine. नया दाख मधु उससे भी ज्यादा। He says more when the farmers get plenty abundant of harvest, they are glad, they are very happy. और जब किसानों को जो है बहुतायत की फसल मिलती है वो बहुत आनंदित होते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because their harvest did not go did not go in waste. और क्योंकि उनकी फसल जो है वो व्यर्थ में नहीं गई, Their labor did not go in और waste. उनकी जो है मेहनत भी व्यर्थ नहीं When गई। farmers work in the field, they labor hard. और जब किसानों ने खेतों में काम किया उन्होंने सख्त मेहनत की थी। Amen. They Amen. plow the field. उन्होंने खेत जोता, They put the water. पानी डाला, They put everything. पानी लगाया और सब काम Amen. किए, They fertilize the soil. उसको उपजाऊ बनाया। Amen. Amen. And what happened? और उसके बाद क्या They हुआ? sow the seed उन्होंने बीज जो है बोए, लगाए in the field. खेतों में। Amen. आमेन। And when they get the fruit, और जब उसका फल पाया, complete fruit, पूरा फल पाया, complete harvest, पूरी फसल, they are happy. तो वो खुश हो गए, They are rejoicing वो आनंद मना रहे because of the great harvest. और अपनी जो है उनकी जो है बड़ी फसल प्राप्त करने के Amen. कारण। Hallelujah. हालेलुया। And he says new wine. और वो कहता है नया दाख मधु। Amen. आमेन। New wine. नया दाख When मधु। they get new wine, जब उनको नया दाख मधु मिलता है, praise the Lord. प्रभु की स्तुति, Not the old
wine, पुराना दाख मधु नहीं, but talks about the new पर वो wine. नया दाख मधु के बारे में बात कर रहा And है। you put new wine in the new और skin. आप जो है नया दाखरस नई जो है मशकों में डालते हैं। Amen. You do Amen. not put the new wine into old आप skin. नया दाखरस जो है पुरानी मशकों में नहीं डालते। Amen. Amen. Because if you put the new wine और यदि आप नए दाखरस in को the old skin, पुरानी मशकों में it भर will देते be हैं, ये blasted. फट जाएगी। So they are very happy. तो वो बहुत ही खुश है They have a new skin. और उनके पास जो है नई मशकें हैं। Amen. Amen. New wine. नया दाखरस। And farmers are happy. और जो है किसान बहुत खुश है, प्रसन्न है। Amen. Amen. But David says, पर दाऊद कहता है more than the harvest that makes them glad, और उनकी फसल जो उनको खुश करती है उससे भी कहीं बढ़कर, more than the wine, the new wine that makes them glad, और जो दाखरस के द्वारा जो उनको खुशी होती है उससे भी कहीं बढ़कर, and joyful, और जो आनंद से भरकर, he says, वो कहता है more than that, उससे भी बढ़कर you have put gladness, joy in my heart. तूने मुझे उससे कहीं अधिक आनंद से भर दिया है। Verse 8 says, 8वीं आयत कहती है, in peace I will both lie down and sleep, for मैं- you alone, O Lord, make me to dwell in safety. मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। NIV version says, और NIV जो अंग्रेजी का अनुवाद कहता है, David is saying, fill my heart, you have filled my heart with joy. और वो दाऊद कहता है कि तूने मेरे हृदय को आनंद से भरा है। When their grain and new wine abound. और जब नया दाखरस और अन्न बहुतायत से बढ़ते हैं। NLT says, you have given me greater joy. और NLT कहता है कि तूने मुझे अत्यंत आनंद दिया है। Greater joy. अन्य जो है बड़ा आनंद, Than those who have abundant harvest of grain and new wine. और जिनको जो है नया अन्न और दाख मधु का आनंद होता है उससे भी बढ़कर। Amen. Amen. Hallelujah. 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 See, David is praising and singing to God. देखिए दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और गीत गा रहा था। Even when he was surrounded by enemies. और हालांकि जब वह अपने शत्रुओं के घेरे में था, घिरा हुआ था शत्रुओं Enemies से, who want to kill him. और ऐसे शत्रु जो उसको घात करना चाहते थे उसकी, They were seeking his life. वो उसके जीवन को जो है उसके जीवन के पीछे थे, पड़े हुए थे। People around him were all threatening him. उसके इर्द गिर्द के लोग उसे धमकी दे रहे थे। Even the circumstances and situations was not towards him. और हालांकि जो हालात जो परिस्थिति भी उसके हक में नहीं थे, It wasn't favorable to him. उसके पक्ष में नहीं थे बिल्कुल भी। But in the midst of that enemy, उन शत्रुओं के बीचों बीच, in the midst of those unfavorable और जो है circumstances, उसके जो है ना हित में जो हालातों के in the मौजूद, midst of all the threats, और उन धमकियों के बीचों बीच, in the midst of all और सारी challenges, चुनौतियों के बीचों बीच, he said to God, उसने परमेश्वर को कहा, God, you have still put joy in my heart. परमेश्वर तूने अभी भी मेरे हृदय में आनंद भरा हुआ है, Greater joy in my heart. मेरे हृदय में बड़ा आनंद, More than those farmers who's collecting the harvest abundantly. और जो किसान जो है अपनी फसल को बहुतायत से प्राप्त करने के आनंद से भी ज्यादा, More than that wine. उस दाख मधु से भी ज्यादा, I am so happy and glad. मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। In the midst of every situation, हर हालात के बीच में I am glad. मैं खुश हूँ, I am joyful. मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। James 1 verse 2 says, याकूब पहला अध्याय उसकी 2 आयत कहती है, please go with me to James. कृपया मेरे साथ खोल लीजिए। Listen what the Spirit of the Lord is saying अब today. सुनिए परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। Receive the word. वचन को प्राप्त कीजिए, ले लीजिए। Amen. आमेन। And be fruitful. और फलवंत बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। James 1 verse 2 याकूब पहला अध्याय उसकी 2 आयत कहती है, and to verse 4. 2 से लेकर 4 आयत तक। It says, consider it all joy, my brethren and sisters,
when you encounter various trials. हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। Amen. Consider it joy, और वो कहता है कि इसको आनंद की बात समझो, greater joy. बड़ा आनंद। Just like David, उसी प्रकार जैसे दाऊद ने he's किया, saying, put gladness in your heart. और उसने कहा था कि तूने मेरे हृदय में आनंद भरा है। Hallelujah. हालेलुया, Greater joy. बड़ा आनंद। Amen. आमेन। When situation is against you, जब हालात आपके विरोध में होते हैं, people is against you. लोग आपके विरोध में होते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you are in crisis. जब आप विपत्तियों में होते हैं। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। In any situation, किसी भी परिस्थिति में, any circumstance, किसी भी हालात में, when you don't see your answer of your prayer, जब आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को देख नहीं पाते, he says that is the moment, वो कहता है कि वही वो that समय, is the वही time. समय है। Be happy, खुश रहो, be joyful, आनंद से भरे रहो, consider it इसको joyful. पूरे आनंद की बात समझो। When you encounter various tests and trials. जब तुम अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो। Verse 3 says, तीसरी आयत कहते हैं, knowing that the testing of your faith produces endurance. वो कहता है कि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Consider it all joy. और वो कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। Hallelujah. आमेन। Knowing that इस बात को जानते the हो testing of your कि faith तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से produces endurance. धीरज उत्पन्न होता है। Amen. आमेन। And verse 4 says, चौथी आयत कहती है, and let endurance have its perfect result, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, so that you may be perfect. कि तुम पूरे हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। Means mature. इसका अर्थ है कि आप परिपक्व हो जाओ। Means grow up. इसका अर्थ है कि आप बढ़ो, बड़े हो जाओ। Means abound. इसका मतलब है बहुतायत से हो जाओ। Means increase. इसका अर्थ है बढ़ना। Means multiplication. इसका अर्थ है बहुगुणित होना। Amen. आमेन। So that you may be mature and complete, lacking in nothing. ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, परिपक्व हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When test comes, जब परीक्षाएं आती है, when trials comes, जब परखें आती है, in the situation, in the midst of every situation, हर हालात के बीचों बीच, you know people against you. आप जानते हो कि लोग आप You लोग know आपके that विरोध में हैं। enemies against you. आप ये भी जानते हो कि शत्रु आपके You विरोध में know हैं। that plans according to your plans, according to God's plan, it's not going. और आप ये भी जानते हो कि आपकी योजना या परमेश्वर की योजना के अनुसार चीजें नहीं चल रही, It's not favorable. ये आपके हित में नहीं। In the midst of all those इन situations, सब हालातों के बीचों बीच he says, वो कहता है, David said, दाऊद कहता है, fill your heart, put gladness in your heart और अपना हृदय भरो, हृदय में आनंद भरो, with greater joy. बड़े आनंद के साथ। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। And James says, consider it all joy. और याकूब कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, And so that you can be mature. ताकि आप परिपक्व हो जाओ Amen. And lack nothing and be complete. और आपको किसी भी चीज की घटी ना हो, आप पूर्ण हो जाओ। Go with me to Luke. लूका चलिए मेरे साथ, लूका में, लूका 6. 6वां अध्याय, Chapter 6. 6वां अध्याय, Verse 22 to 23. 22 से 23 आयत। It says, blessed are you when men hate you. The Bible says, I don't say. देखिए बाइबल ऐसा कहती है, मैं ऐसा नहीं बोलती। बाइबल कहती कि धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। It's so clear. बहुत साफ है। It says, blessed are you. You are blessed when men are hating you. ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, वो कहता है कि तुम धन्य हो जब लोग तुमसे बैर
रखते हैं। when you're following the leading of the Spirit, जब आप आत्मा की अगुवाई में चलते हो, when you're obeying the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते हो, when you are putting yourself in the plan of God, जब आप अपने आप को परमेश्वर की योजना में रखते हो, for the sake of Jesus, यीशु के खातिर, it says, blessed are you when men hate you. और वो कहता है कि जब मनुष्य तुमसे बैर रखता है तब तुम धन्य हो, and ostracize you, और तुम्हें निकाल देंगे, and insult you, और तुम्हारी निंदा करेंगे या and- बेइज्जत करेंगे, and scorn your name as evil, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, for the sake of the Son of Man. मनुष्य के पुत्र के कारण। Verse 23 says, 23 आयत कहती है, then you be glad in that day, उस दिन आनंदित होकर उछलना, and leap for joy, आनंदित होकर उछलना, for behold your reward is greater in heaven. क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। In the same way their fathers used to treat the prophets. और उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। In the midst of all that situation, उन हालातों के बीचों बीच it says, वो कहता है, when you know people are hating you, जब आप जान जाते हैं कि लोग आपसे घृणा करते हैं, rejecting वो you, आपका तिरस्कार करते हैं, disappointing आपको you, निराश करते हैं, insulting आपको you, बेइज्जत करते हैं, you leap with joy आप आनंद से उछलिए in that midst. उसके बीच में। Hallelujah. आमेन। You leap with joy आप आनंद से उछलिए and be glad. और आनंदित हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Your reward is greater in heaven. आपका इनाम जो है स्वर्ग में बहुत बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। For in the same way उसी तरीके से they did to the fathers in the Old Testament, उन्होंने पुराने नियम के बाप दादाओं से भी ऐसा ही किया था। they did same and treated the prophets same way. भविष्यवक्ताओं के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया था। They have put them into prison. उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डलवा They दिया। have put the men of God into cave परमेश्वर के जनों को जो है गुफाओं में बंद करवा दिया। before the lions. शेरों के सामने They have been killed, उनको मरवाने के लिए। right? आमीन। They did the same in the old time. पुराने नियम में भी वैसा ही It's किया। nothing new. देखिए कुछ भी नया नहीं If they है। hate you यदि वे आपसे बैर रखते हैं for the Son of Man मनुष्य के पुत्र के or for कारण, the Son of God, परमेश्वर के पुत्र के कारण, it's nothing new if they insult तो you. इसमें कुछ नई बात नहीं है यदि वे आपसे भी बैर It करते is हैं। nothing new if they despise you. देखिए यदि वे आपको तुच्छ समझते हैं, बेइज्जत करते हैं, इसमें भी कोई नई बात नहीं। That is your reward. ये आपका प्रतिफल है। Leap with joy. उछलिए आनंद के साथ। Amen. Amen. And put gladness in your और heart अपने हृदय में आनंद because भरिए। you have reward in क्योंकि heaven. आपके पास स्वर्ग में प्रतिफल होगा। My friend, मेरे मित्रों, joy demonstrates his close relationship with God. देखिए आनंद जो है वो आपका जो परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध को आनंद प्रदर्शित करता है। David knew God. दाऊद परमेश्वर को जानता था। He had known God with whole heart. वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को जानता था। Amen. Amen. He had a strong bonding and relationship with Father God. उसका पिता परमेश्वर के साथ एक बहुत ही मजबूत एक बंधन था। He was जुड़ा one था। with God. वो परमेश्वर के साथ एक था। He knew वो God. परमेश्वर को जानता था। Amen. आमेन। That's why he demonstrated joy every time. इसीलिए उसने हर समय आनंद का प्रदर्शन In किया, every situation. हर एक हालात में। Hallelujah. हालेलुया। No matter what happened to him, उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो, he was always with वो joy. हमेशा आनंद से He always danced with joy. आनंद से जो है उछला, He always leaped with joy. आनंद से उछला कूदा नाचा। Amen. आमेन। Hallelujah. 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 He always shouted and cried out with वो joy. हमेशा आनंद से पुकारा चिल्लाया। Hallelujah. आमेन। It demonstrates your relationship ये आपका रिश्ते को प्रदर्शित करता है with God the Father. पिता परमेश्वर के See, साथ। joy teams up with the submission to Jesus. और देखिए जो Joy teams up टीम्स अप, जो आनंद जो है वो
उस दल के साथ जुड़ा हुआ है, Our अधीनता के साथ जुड़ा हुआ our है परमेश्वर के प्रति। submission with Jesus हमारी यीशु के प्रति अधीनता के साथ जो है उस दल में जुड़ा हुआ है, to his commandments. उसकी आज्ञाओं के साथ। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. When you are teamed up with the commandment of Jesus, जब आप यीशु की आज्ञाओं के दल में जुड़े हुए हो, you are full of joy. आप आनंद से भरे हुए You हो, leap with joy. आप आनंद से Your उछलेंगे। heart is filled with joy. आपका जो हृदय आनंद से भरा हुआ होगा। Amen. आमीन। Go to John, please. कृपया चलेंगे यूहन्ना। John 15. यूहन्ना So the 15 Spirit of the Lord says, परमेश्वर का आत्मा ऐसा कहता है, hey, wake up. हे जागो, Fill your heart with joy. अपने आनंद को, अपने हृदय को आनंद से भरिए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. This is your moment. ये आपका समय This है, is your ये time. आपका समय This है, is your ये year. आपका साल This है, is your ये day. आपका दिन The है। Lord has made. प्रभु ने इसको बनाया। Amen. Amen. And we will be glad. और हम इसमें आनंदित होंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। John 15 verse 10 says, यूहन्ना 15:10 कहती है, it says, if you keep my commandments, you will abide in my love. और वो कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। Jesus is saying to his church, यीशु अपनी कलीसिया से ऐसा कहता है, to his अपने disciples. चेलों से ऐसा कहता है। Amen. आमीन। He says, if you keep my और वो commandments, कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे you will leap with तुम joy आनंद से उछलोगे and you will abide in my love. और तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। Just as I have kept my Father's commandments वैसे ही जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ and abide in his और love. उसके प्रेम में बना रहता हूँ। And verse 11 11वीं आयत says, कहती है, these things I have spoken to you, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं so that my joy may be in you. कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। Hallelujah. हालेलुया। These things I have spoken to ये you, बातें मैंने आपसे कही हैं so that my joy may be in you. ताकि मेरा आनंद तुम में बना रहे। Joy that is abundant, वो आनंद जो बहुतायत से हो, unconditional. बिना शर्त वाला। Hallelujah. Hallelujah. More than enough. पर्याप्त से भी बढ़कर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And that your joy may be made full. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. One of the verse says, उनमें से एक आयत ऐसा कहती है, I think in verse 7, if you go up यदि आप थोड़ा आगे जाए 7वीं आयत in the में, same chapter, उसी अध्याय की, it says, if you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in और मेरा you, वचन तुम में बना रहे, whatever जो कुछ you wish or desire, जो भी तुम चाहते हो, इच्छा रखते हो, it will be done for you. वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Same way in verse 10 and 11. और 10वीं और 11वीं आयत में भी He ऐसे says, ही, if you keep my commandments, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे you abide in my love. तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, You abide in my word. तुम मेरे वचन में बने As रहोगे, I was with my Father. जैसा मैं अपने पिता के साथ हूं। Hallelujah. हालेलुया। I speak these things in verse 11, he says, और 11वीं आयत में वो कहता कि मैंने ये बातें so तुमसे that इसलिए my कही है joy be in your heart, कि मेरा हृदय, मेरा आनंद तुम में बना रहे that your joy may be full और तुम्हारा आनंद पूरा हो when जाए, your desires are fulfilled. तुम्हारी इच्छाएं जब पूरी हो जाए, Hallelujah. When your wishes comes to जब pass. आपके दर्शन पूरे हो जाए। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति He हो। वो says, कहता है fill with joy. आनंद से भरो। There is joy in your heart. आपके हृदय में आनंद है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Be filled more. और भरते जाओ। In time of David, दाऊद के समय में he had to put and fill his heart with joy. और उसको तो अपने हृदय को जो है आनंद से भरना पड़ता था। But today, पर आज we have the good news. हमारे पास अच्छी खबर The है, joy of the Lord is in our वो heart. प्रभु का आनंद हमारे हृदय में है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit of the Lord has poured into our heart the joy of God. परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है, जो परमेश्वर का आनंद है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So team up joy, और
team up the joy और आनंद के साथ जो है दल जोड़ना which is in your heart जो आपके हृदय में है with the commandments of Jesus. यीशु की आज्ञाओं के साथ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So that every time you can demonstrate the joy ताकि आप हर समय आनंद को प्रदर्शित कर सके, प्रकट कर in the सके midst of every हर situation. एक हालात के दौरान भी। Hallelujah. हालेलुया। And prove that you have a good और relationship with God. साबित कीजिए कि आपका परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, Strong relationship. एक मजबूत घनिष्ठ रिश्ता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to John 16, please. 16वें अध्याय में चलिए मेरे साथ यूहन्ना के। Hallelujah. हालेलुया। John 16, यूहन्ना 16 अध्याय verse 24. और उसकी 24 आयत। It says, until now you have asked for nothing in my name. वो कहता कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, Ask and you will receive, मांगो तो तुम पाओगे, so that your joy may be made full. ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। He's saying, ask. वो कहता कि मांगो, Whatever you will ask, जो भी तुम चाहते हो मांगो, you will receive आपको it, आपको मिलेगा, so that your joy may be full. ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So abide in joy, आनंद में जुड़े रहो, बने रहो, abide in my love, मेरे प्रेम में बने रहो, abide in my मेरी commandments, आज्ञाओं में बने रहो, and whatever you will ask. जो भी आप मांगते हो Amen. Amen. Hallelujah. You Hallelujah. will receive it, आप उससे प्राप्त so करोगे, that your joy may be full. ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Go with me to Romans. मेरे साथ चलिए रोमियो में। Romans रोमियो chapter 14, 14वां अध्याय verse 17. उसकी 17 आयत। Hallelujah. हालेलुया। And where there is joy, जहां आनंद है there's the presence of God. वहां परमेश्वर की And उपस्थिति where there है। is joy, जहां आनंद है you are strong, आप बलवंत you're हो, bold, आप दिलेर you're हो, confident, आप हियाब, you know your God. आप अपने परमेश्वर को जानते हो। Joy आनंद is the strength. वो बल है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 17 says, 17 आयत कहती है, verse chapter 14, verse 17. 14 अध्याय की 17 आयत। See, it says, for the kingdom of God is not eating and drinking, कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, but righteousness पर धर्म and और peace मेल मिलाप and joy in the Holy और वह Ghost. आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Hallelujah. हालेलुया। Joy in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में आनंद। How will you know you're filled with the Spirit of आप God? कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा से भरे How हुए will you know that you're flowing in the Spirit of God? कैसे आप जानेंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा के बहाव में हो? How will you know that you're flowing and being led by the Spirit of आप God? कैसे जानेंगे कि आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बह रहे हो, चल रहे हो? When you demonstrate, when you have joy in your heart. जब आप जो आपके हृदय में आनंद है उसको प्रकट करते हो, Hallelujah. दर्शाते हो। Hallelujah. Hallelujah. It says righteousness, peace, and joy in the Holy वो Ghost. कहता है कि धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Amen. Go to Galatians गलातियों में चलिए chapter 5. 5वां अध्याय, Chapter 5. 5वां अध्याय। And the Spirit of God और परमेश्वर का is आत्मा saying, कहता है be filled with the joy. आनंद से भरते जाओ, More joy. और आनंद। Hallelujah. हालेलुया। It's in your heart. ये आपके हृदय में है, Let it flow out of your होने belly. दीजिए, ये आपके पेट में से बहे। When test comes, जब परीक्षाएं आती है, when trials comes, जब परख आती है, when people hate you, जब लोग आपसे घृणा करते हैं, people insult you, जब लोग आपको बेइज्जत करते हैं, consider it all joy. इसको पूरे आनंद की बात समझो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। It says Galatians 5:22 और गलातियों 5 की 22 कहती है, to 23. 22 से 23 आयत। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Joy is the fruit. जो
आनंद एक फल है, and it's a good fruit, ये अच्छा फल है, and it's a heavenly fruit. ये स्वर्गीय फल It's है, an anointed ये fruit. अभिषिक्त फल है, It's a divine ये fruit. अलौकिक फल है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. प्रभु It's की a स्तुति। God-given fruit deposited in our heart by the Holy ये Spirit. परमेश्वर के द्वारा दिया गया फल है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में It डाला is in गया। you. ये आपके You अंदर है, cannot deny it. आप इसका It's in इनकार there, नहीं कर सकते, in your आपके heart. अंदर, आपके हृदय में है। Hallelujah. Hallelujah. When you demonstrate, जब आप इसका प्रकट करते हैं again, among all the हर एक situations, हालात के दौरान, when you जब demonstrate आप इसका प्रकटीकरण the करते हैं joy आनंद को that is within जो आपके you, अंदर है, you let it flow आप इसको बहने देते out हैं of your belly, आपके अपने out पेट of से, your life, आपके जीवन में in से, every हर situation. हालात में। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. You make the fruit grow. आप फल को बढ़ने Amen. में लेके आते You हैं, make the fruit grow आप फल को बढ़ाते हैं, and mature. परिपक्व करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So that your joy may be full. ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। Amen. Amen. You demonstrate God. आप परमेश्वर को प्रकट करते हैं, You demonstrate the presence of आप God. परमेश्वर की उपस्थिति का प्रगटावा करते हैं। Where the presence of God is, there is full of joy. जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। Amen. Hallelujah. 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 You can continue live in that fruit. आप लगातार उस फल में जी सकते You हैं, can continually demonstrate that fruit. आप लगातार उस फल को प्रकट कर सकते हैं, Not like a mad person, एक पागल व्यक्ति की तरह नहीं, like the worldly mad physical person, और जैसा संसारिक पागल व्यक्ति को, but like a normal बट person. एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर। Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. Because your heart is always filled with joy. क्योंकि आपका हृदय हमेशा जो है आनंद से भरा हुआ है। Amen. आमेन, You can be normal. आप सामान्य हो You सकते can be normal. सामान्य बन As सकते हैं, Pastor Mark says, जैसे पास्टर मार्क कहते be हैं, normal. सामान्य बने Be रहो normal सामान्य बने and रहो। also filled with joy. और साथ साथ आनंद से भरे रहो। Amen. Be Amen. normal सामान्य रहो in every हर situation, हालात में, in every हर circumstances. Be परिस्थिति में normal सामान्य रहो। when people hate you, जब लोग आपसे be बैर करते हैं, normal सामान्य बने रहे and be filled with joy. और आनंद से भरे रहे। Hallelujah. हालेलुया, Be filled with joy. आनंद से भरे रहे Demonstrate joy और आनंद को because it प्रकट is कर, the fruit क्योंकि ये फल है of your spirit. आपकी आत्मा का। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, It is in you. ये आपके अंदर है, It is there. ये वहां है। You don't have to go around and look for joy आपको इधर उधर जाके आनंद ढूंढने की जरूरत in a नहीं, cinema hall सिनेमा हॉल में or भी in a नहीं, club या किसी क्लब or में in जाकर, drinking या किसी or dancing पीने या नाचने or वाले in स्थान a में नहीं, party. या पार्टियों में नहीं। No, you just need to look inside of आपको you. तो केवल अपने भीतर देखने की It जरूरत is है, inside of ये you. आपके अंदर है। The joy of the Lord आनंद प्रभु का is your आनंद, जो strength. आपका बल है, Hallelujah. Hallelujah. And keeps you in the presence of God, जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बनाए रखता है, which makes everything abound जो to you. सब चीजों को आपके लिए बहुतायत से बनाता है। Hallelujah. 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 हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. So demonstrate joy आनंद को प्रकटीकरण कीजिए because it's the fruit. क्योंकि ये फल है। Be filled. बढ़ते रहे, See, David had to fill himself. और देखिए दाऊद को अपने आप को भरना पड़ता था। You don't have to fill yourself. आपको अपने आप को भरने की जरूरत You नहीं, have to make the joy come out of पर yourself. आपको ऐसा बनाना होगा कि अपने अंदर से आनंद को जो है बहने देना होगा, निकलने देना It is होगा। already filled. ये पहले से ही भरा हुआ है, Let it flow. उसको बहने दीजिए। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, It's a fruit. ये फल है। Hallelujah. हालेलुया, It's a special fruit. ये खास फल है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। And if you read Psalm 8, और यदि आप chapter भजन 4, संहिता verse 8, चौथा अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ते it हैं, speaks about peace. वो शांति के So बारे में David is speaking दाऊद बात कर रहा है, about joy and peace. और आनंद और शांति के बारे में। He says, वो कहता है, I am full of joy मैं आनंद से भरा हुआ more हूं, than the farmers, किसानों से भी ज्यादा, those who उनके आनंद, harvest abundantly और जिनको बहुतायत की फसल मिलती है, of the grain and new wine. और जो है अन्न और नया दाखरस। Hallelujah. आमेन। And I sleep in peace on my bed और वो कहता है कि मैं शांति से अपने बिस्तर में लेटता हूं, because I know I am safe and secure in सोता your हूं, hand. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूं, और And I'm confident मैं हियाब रखता हूं, भरोसा रखता हूं, because my future is bright क्योंकि मेरा भविष्य जो है चमकीला है, and safe. उज्जवल है, सुरक्षित है। Hallelujah. हालेलुया, And blessed. और आशीषित है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, I'm peaceful. और शांति I'm से भरा, joyful.
आनंद से भरा हुआ। Amen. आमीन। Hallelujah. प्रभु की स्तुति। Hallelujah. हालेलुया। Those who trust in the Lord. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, Complete trust. पूरा भरोसा, Complete trust. पूरा In every भरोसा, situation, हर हालात in में, every हर circumstance, परिस्थिति में you will see those people आप उन लोगों को देखेंगे in joy and in peace. और आनंद और शांति में, Always हमेशा happy, खुश, happy, happy, happy. खुश 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 खुश। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. They are demonstrating joy आनंद का प्रकटीकरण because कीजिए, they know the fruit of the joy क्योंकि is in their heart. वे आनंद के फल को जो आपके अंदर है उसको जानते हैं, And they know that is the reward. और वो जानते हैं कि ये उनका प्रतिफल भी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. The joy is in you. जो आनंद आपके अंदर है। Amen. आमीन। Hallelujah. The हालेलुया। Spirit of the Lord is saying, परमेश्वर का आत्मा no कहता है, matter what government comes, कौन सी भी सरकार क्यों ना है, what is going on, बाहर क्या चल रहा है, to the church he says, पर कलीसिया को वो कहता है, demonstrate joy आनंद का प्रकटीकरण कीजिए and be in peace. और शांति में बने रहे, Trust his word उसके वचन पर and भरोसा रखें abide in his और commandments. उसकी आज्ञाओं में बने रहे, Dwell in his उसकी presence. उपस्थिति में वास करें। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Jesus loves you यीशु आपसे प्यार and करता I है, love you. मैं भी आपसे You're प्यार करता हूं। dismissed. डिसमिस हो आप। Before I close once again, समाप्त करने से this पहले is cards, ये कार्ड्स है छोटे, alumni invitation, अलुमनाई के इनविटेशंस alumni and ministers conference और अलुमनाई और सेवकों की सभा of 2021. 2021 की It is from 12th to 16th April अप्रैल 12 से लेके 16 तक this year. इस साल, And we have given all the address. It will be in this Rhema RBTC campus, Chandigarh. और ये आरबीटीसी कैंपस यहीं पर होगी सभाएं, And the timing starts from Monday evening और- at 6:30 p.m. और सोमवार शाम को 6:30 बजे से ये शुरू होगा। Amen. आमीन। It will be from timing from Tuesday to Friday. और जो है मंगलवार से लेके शुक्रवार तक की जो समय है, You will have it in it is written here. और यहाँ लिखा हुआ है, समय दर्ज Or है। when you will come, you will know. जब आप आएंगे तब भी जान जाएंगे। But it starts from Monday evening, 6:30 p.m. पर ये शुरू होगी सभाएं सोमवार 6:30 बजे शाम से till Friday. शुक्रवार तक शाम तक। So registration fee is 300 rupees. और जो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपया ही है। Amen. आमीन। And we have given the official information number. और यहाँ जो है ऑफिशियल जानकारी के लिए नंबर दिया गया है। The number is 918283838132. वो नंबर है 82 83 83 81 32। Once again, फिर से 918283838132. फिर से 82 83 83 81 32। Amen. And you can go in email info@rhema-chandigarh.org. ईमेल जा सकते हैं info@rhema-chandigarh.org में, Or you can go to our website या वेबसाइट में भी जा सकते हैं www.rhema-chandigarh.org. www.rhema-chandigarh.org। So you can have this invitation. आप इस इनविटेशन निमंत्रण पत्र को ले सकते हैं, Amen. And you all are invited. और आप सबको इनवाइट किया It जाता is है। from 12 to 16 ये April. 12 से लेके 16 अप्रैल तक है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Meet each other. Hug each दूसरे से other. मुलाकात कीजिए, गले मिलिए। We love you. हम आपसे You're प्यार करते हैं। dismissed. डिसमिस हो आप।